بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی نیک اعمالیوں پر ناز نہیں کرنا چاہیے اور اللہ سے عدل کی بجائے فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے؟ تو مولانا روم نے فرمایا، وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا، میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا، جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں
ये साबित करते करते कि बेशक हमारा तरीका गलत था, पर हमारा इरादा नहीं। इस दुनिया में जो लोग दूसरों का जीना मुश्किल करते हैं, उनका मरना आसान नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी कमज़ोरी शराफत है, जिसका फ़ायदा अक्सर घटिया लोग उठा लेते हैं। अपने दिल की कैफियत अपने अल्लाह को बताया करें। आप क्या महसूस कर रहे हैं, कितनी तकलीफ़ों में हैं, क्योंकि आप यकीन करिए वो बहुत प्यार से सुनेगा और उसके सामने रो लेने से ही आपके दिल में सुकून उतर जाएगा, क्योंकि बेशक वो हमारे दिलों के हर राज जानता है। ज़्यादा गुफ्तगू करने की आदत या तो औरतों में होती है या फिर कमज़ोर मर्दों में, क्योंकि ताकतवर मर्द कभी ज़्यादा बात नहीं किया करते। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोज़ी पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ताला उससे थोड़े अमल पर भी राज़ी हो जाता है। इस दुनिया में जो शख्स गुनाहों के ज़रिए अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है, तो उसकी आरज़ुएं बहुत देर से पूरी होती हैं, और वो शख्स जिस चीज़ से डरता है, सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज में कितनी फजीलत है, तो अगर उन्हें घुटनों के बल भी आना पड़े तो वो फिर भी मस्जिदों में आएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे, वो हम में से नहीं है। अपने बाप से मुंह ना फेरो, क्योंकि जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। पत्थर से किसी ने कहा कि क्यों ना तुम इंसान बन जाओ, तो पत्थर ने जवाब दिया कि अभी मेरे अंदर इतनी सख्ती पैदा नहीं हुई है कि मैं इंसान बन जाऊं। ए मौला, मुझे सब्र में रखना और कभी गिरने ना देना, ना ही किसी की नज़रों में और ना ही किसी के कदमों में। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है, वो सुकून कोई और चीज़ नहीं दे सकती। अगर हम अपनी हर मुस्कुराहट पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते, तो अपने आंसुओं के हर एक कतरे के लिए अपने अल्लाह को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। इस दुनिया में लोग आपकी बातों के हजार मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत को आपका अल्लाह जानता है। इसलिए आपको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है, ना कि बंदों की मर्जी के मुताबिक। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसे करने से तुम अपनी मुश्किलात बढ़ा लोगे। इस दुनिया में कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है, और कम सोना इबादत है। ये भी एक सच है कि इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल देता है। इस दुनिया में जिसके पास दुआ मौजूद है, उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। अपने अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर पैदा करो कि आप जिनके लिए आज सिर्फ मजाक थे, तो कल आप उनके लिए एक मिसाल बन जाओ। ए इंसान, जब तुझे जाना मिट्टी में है, तो फिर हसरतों का पहाड़ कैसा। इस दुनिया में जब लोग आपको समझ नहीं पाते, तो आपको गलत करार कर देते हैं। खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम
اور आजमाते ज़्यादा हैं। अपनी ज़िंदगी को सादा मगर अपने ख्यालात को बुलंद रखो। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफना दो। इस दुनिया में अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मौसिन होता है। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि बदतर बनाने के लिए। नई बाब का आगाज तब नहीं कर सकते जब तक कि आप पुरानी बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। इस दुनिया में आपके बारे में हर किसी को सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। इज्जत उतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा दोगे तो तुम अपनी इज्जत भी खो दोगे। इस दुनिया में उस शख्स को कोई बदल नहीं सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर ना आती हो। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कद्र होती है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। शुक्र है इज्जत और रोटी इंसान के हाथ में नहीं है, वरना ये कीड़े लगे लोग किसी को जीने भी नहीं देते। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही जबानें। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नियत लोगों से छिपा सकते हैं, लेकिन उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। इस दुनिया में लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्ती लगा लेते हैं। इस दुनिया में बदतमीजी हर इंसान कर सकता है, मगर किसी किसी को उसकी तरबियत रोक लेती है। किसी को इतना प्यार दो कि गुंजाइश ना छोड़ो, लेकिन अगर वो फिर भी तुम्हारा ना बन सके तो उसे छोड़ दो, क्योंकि ऐसा शख्स मोहब्बत का तलबगार नहीं बल्कि अपनी ज़रूरतों का पुजारी होता है। दिल में खुदा का होना लाजमी है, क्योंकि उसके बिना सजदों में पड़े रहने से जन्नत नहीं मिलती। इख्तलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही इखलाक है। दिल में खोट हो तो दुआ, अता और मोहब्बत तीनों रास्ते बदल लेती हैं, लेकिन जब बंदा मुखलिस हो तो इज्जत मेरा रब देता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्को कम से कम रखें और ऊपर जो ज़ात है सिर्फ उससे तवक्कल रखी जाए। इस दुनिया में सबसे अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। इस जमाने की जहालत का इल्म तो देखें कि कीमती चादरें बेजान कब्रों पर और जिंदा इज्जतें बेहिजाब फिरती हैं। गिरते हैं सजदों में हम अपनी हसरतों के खातिर, क्योंकि अगर गिरते सिर्फ इश्क़ खुदा में तो कोई हसरत अधूरी नहीं रहती। बिस्तर से उठकर मस्जिद तक जा न सके और ख्वाहिश रखते हैं कब्र से उठकर जन्नत में जाने की। हया नहीं है ज़माने की आँख में बाकी, खुदा करे के जवानी रहे तेरी बेदागी। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक, लेकिन कुछ बड़ी बात होती जो होते मुसलमान भी एक। जिस इंसान में ज़ाती सिफात ना हो वो अपने लिबास से लेकर
अपने मकान तक अपनी ही शय की तारीफ चाहता है। जब कानों को गीबत सुनने की लत लग जाए तो चुगली ज़बान का हिस्सा बन जाती है और कीना दिल का सुकून। किसी इंसान के कमज़र्फ होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपनी ज़बान से अपनी तारीफ करने पर मजबूर है। जब आँखों के अंदर दिल आ जाए तो दिल में आँखें पैदा हो जाती हैं। ए अल्लाह, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से निस्बतें। इबादत ज़रूर कीजिए मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ़ नहीं होते। इस दुनिया में मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। इंसान सख्त दिल कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। इस दुनिया में टूटने का मतलब हमेशा ख़त्म होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने का मतलब ज़िंदगी का आगाज़ भी होता है। अच्छी बात सुनकर उस पर अमल करो और ये ना देखो कि कहने वाला कौन है। इस दुनिया में तमाम कामयाबियों का राज सब्र है। हज़रत अली ने फरमाया, सबसे पहली इबादत ये है कि इंसान मुसीबत में सब्र करके अल्लाह ताला की तरफ मदद का मुंतज़िर रहे। इस दुनिया में रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो अकेले रह जाओगे। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। इस दुनिया में किसी को भी इतना हक मत दो कि वो तुम्हें छोटा महसूस करे। इस दुनिया में मुख्तसर रहो लेकिन मुखलिस रहो। इस दुनिया में बादशाह तो वक्त होता है और बाकी सब तो यूं ही गुरूर करते हैं। किसी का बुरा चाहने से पहले ये भी सोच लें कि आप भी उस दुनिया में ही रहते हैं। इस दुनिया में लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ रास्ते सबक के। न जाने वो पत्थर कहाँ से मिलता है जो दिल पे रख कर लोग सब कुछ भूल जाते हैं। इस दुनिया में मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। इस दुनिया में लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जैसे तुम सोते वक्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। तुम्हारा रब जिस चीज़ को तुम्हारे करीब कर दे तो उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज़ को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। हज़रत अली ने फरमाया, जो ज़ात रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिनने नहीं देती, वही ज़ात इंसान को कैसे बेयार और मददगार छोड़ सकती है। अपना सिर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीची रखो ताकि पता चल सके कि तुम बाइज्जत घराने से ताल्लुक़ रखते हो। इस दुनिया में रिश्ते मजबूत करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है। जहाँ छोटों की ज़बान बड़ी हो जाए वहाँ बड़ों के रुतबे ख़त्म हो जाते हैं। इस दुनिया में कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। इस दुनिया में समझदार वो नहीं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, बल्कि असल समझदार वो है जिसे ये हुनर आता हो कि किससे कहाँ पर किस अल्फाज और किस लहजे में बात करनी है। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज्जतों का तमाशा बनाए, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर मान, भरोसा, एहतराम और आदाब का पर्दा डालें।
इस दुनिया में मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता उसकी मोहब्बत झूठी है। इस दुनिया में कौन, कब, किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त बताता है। जहां आपकी इज्जत ना हो वहां मत जाओ, चाहे वहां खाने में आपको सोने की प्लेट और चांदी के चमचे में ही क्यों ना दिया जाता हो। सर झुकाने की खूबसूरती भी कमाल की होती है, क्योंकि सजदा जमीन पर होता है लेकिन दुआएं आसमान तक जाती हैं। जब कोई दोस्त तुम्हें अपना राज बताए तो ये समझ लेना कि वो अपनी इज्जत तुम्हें अमानत में देता है, और उसमें कभी खयानत मत करना। जब दिल उदास हो और आंखों में आंसू हो तो बस ये बात याद रखना कि अल्लाह तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगा। इस दुनिया में साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं होता। हुजूम के साथ गलत राह पर चलने से बेहतर है कि हिदायत के रास्ते पर तन्हा चल पड़ो। बच्चे बड़े होकर समझ जाते हैं कि अब्बा की पाबंदियां ठीक थीं, और वहीं बंदा मरने के बाद समझ जाता है कि उसके रब की पाबंदियां ठीक थीं। नियत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है, और वहीं दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारा रब तुम्हें तुम्हारी नियत से जानता है। इस दुनिया में 3 रिश्ते हमेशा बेनकाब हो जाते हैं: बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त और गुर्बत में बीवियां।